Good morning, students. So we are starting session 2 now. That is about qualities and function of an entrepreneur. Like in previous section, we have gone through which way an entrepreneur helps society, how do you think and behave. Now we are going through qualities of an entrepreneur. Quality is a way in which a person acts or behaves. Some examples of qualities in people are hardworking, nice, rude, etc. Read the comic strip in figure 4.2 and 4.3 and learn about the qualities of an entrepreneur. क्वालिटी वो होती हैं जो एक व्यक्ति कैसा बिहेव करता है, कैसे काम करता है, उसकी कुछ हम कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग है, अच्छा है, थोड़ा सा रूड है बिहेवियर में, ये सारी चीज़ें मिलकर उसकी क्वालिटी बनाती हैं। तो हम ये फिगर जो दिया गया है, कॉमिक स्ट्रिप आपको दी गई है, उसके थ्रू आपको बताते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स qualities of an entrepreneur. Okay, at first you see, you must believe in yourself. You should be confident and take business decision. This is the first thing. You must have believe in yourself. You should be confident and take business decision. आपको खुद में विश्वास होना चाहिए। आप जो भी डिसीजन लेंगे विथ कॉन्फिडेंस यू हैव टू टेक, और आपको डिसीजन लेने के लिए रेडी होना है। These are the basic things. Oh, that idea did not work, but it's okay, keep trying new ideas. If you start anything, sometimes it gets success, sometimes it won't, but still you should have that idea, that thought in your mind, keep trying new ideas. अगर एक आइडिया नहीं चलता आपका, कोई बात नहीं, आप दूसरे के लिए तैयार हैं, but it means you should have that attitude of keep trying new ideas. Third one, running my business is difficult, but I am patient because I know success will come soon. कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बिजनेस कर रहे हैं लेकिन उसे चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बट यू हैव टू हैव द पेशेंस होना ज़रूरी है, बिकॉज पेशेंस विल पे इन अ लॉन्ग रन, बिकॉज इफ़ यू हैव पेशेंस you will definitely going to get the success. And fourth one is, I had a creative and different solution to the problem, that is why I am successful. होता है, प्रॉब्लम एक जैसी होती है, लेकिन जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जो एक सक्सेसफुल पर्सन होता है, उसका मेन यही तरीका होता है कि वो उसका सॉल्यूशन डिफरेंट तरीके से सोचता है। जैसे कहा जाता है कि ग्रेट पीपल डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। महान वो व्यक्ति क्या करते हैं कि वो कुछ अलग चीज़ नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। मीन्स द वे दे आर वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम एंड टू गेट अ सॉल्यूशन, दैट इज देयर वे. So these are the qualities of an entrepreneur. Now we'll take a story, the story of Jafar. Oops, I made a mistake, but it was my decision, so I take responsibility for it. I will work to make it better. Means आपने कोई डिसीजन लिया, उसमें सक्सेस नहीं हुआ, तो you are taking responsibility of your own failure and you are ready to make it correct for next time. You are making the way to make it better for next time. So success, failure part, but you are taking responsibility and you are working hard to make it better. I take decision after thinking about whether they are good or bad for my business. Means आप डिसीजन लेते हैं as per thinking, because you are thinking how your business is running. Okay, is it good or bad? आप वो डिसीजन लेंगे ये मान के लेते हैं कि मेरे बिजनेस या व्यापार के लिए अच्छा होगा या बुरा, तो अकॉर्डिंगली यू टेक डिसीजन. आपको लगता है कि ये मुझे फ़ायदा नहीं देगा, तो स्टॉप यू दैट थिंग. इफ़ यू थिंक दैट कैन गिव मी प्रॉफिट, टेक दैट आइडिया और डिसीजन. आई एम वर्किंग सो मैनी आवर्स संडे ऑल्सो, बट आई वर्क हार्ड बिकॉज इज गुड फॉर द कंपनी. वो कह रहा है कि मैं काफ़ी घंटे काम करता हूँ जफर. मैं क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज इट इज़ गुड फॉर द कंपनी. वो कह रहा है कि ये अच्छा है किसके लिए? मैं संडे की भी परवाह नहीं करता कि छुट्टी है, छुट्टी के दिन मैं काम नहीं करूँगा. कह रहा है कि आई एम वर्किंग ऑन संडेज, हॉलीडेज. व्हाई? बिकॉज दिस इज फॉर वेलफेयर ऑफ माई ओन कंपनी, फॉर द कंपनी इन विच आई एम वर्किंग. इट कैन बी समटाइम आई हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट आई डू नॉट गिव अप. आई स्टे पॉजिटिव बिकॉज एवरीथिंग विल बी फाइन. कभी कभी होता है कि मेरे पास बहुत सी प्रॉब्लम, समस्याएँ एक साथ में आ जाती हैं, लेकिन मैं अपने आप को बनाए रखता हूँ, मैं हार नहीं मानता. आई डू नॉट गिव अप, मैं छोड़ नहीं देता उस चीज़ को. आई स्टे पॉजिटिव बिकॉज एवरीथिंग विल बी फाइन. मैं क्या कहता हूँ, रहता हूँ हमेशा सकारात्मक सोच रखता हूँ कि चीज़ें अपने आप समय लेंगी, लेकिन
सही होंगी, बिकॉज आई एम पुटिंग एफर्ट्स, आई एम टेकिंग डिसीजन, आई एम वर्किंग हार्ड। सो दीज आर ऑल द क्वालिटीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स। इसको हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से एक समझते हैं। क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर, अगर आपके सामने एक क्वालिटीज का चार्ट रख दिया जाए, इसमें आपको खुद सोचना है कि मैं इसमें अपने लिए यस या नो कहता हूँ। आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड वट आई कैन डू, आई एम कॉन्फिडेंट। यस और नो यू हैव टू थिंक। आप इसको लिखेंगे कि यू आर थिंकिंग वाई और एंड फॉर यू सेल्फ। प्रॉब्लम्स टेक टाइम टू गेट सॉल्व, आई एम पेशेंट अबाउट सॉल्विंग देम। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शन एंड मिस्टेक्स। I work hard on every task. I keep trying new ideas. I think of different ways to solve a problem. I am creative. I think before I make a decision. I do not give up when I face a problem. So these are all qualities of entrepreneur. You have to check in your own case. If somebody will ask you, you will give yourself why or no. Then these are the instructions. Listed in a figure A are all the qualities of successful entrepreneurs. Think about yourself, mark yes or no against each quality. Give yourself a point for every yes answer. So look at how many yes you have. You are good at these things. Can you be better at these? How? Look at the no statement. What can you do to learn these qualities? Okay. So this is the way you can analyze yourself. You can think I am going to be an entrepreneur or not. If you have all this quality, if you are not having this quality, तो what you can do? अगर आपके अंदर ये गुण हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इनके लिए क्या कर सकते हो। तो जो लिस्ट ऊपर दिए गए उसके हिसाब से आपको खुद का सेल्फ एनालिसिस करना है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स इज हैविंग ऑल दिस क्वालिटीज। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। Now we'll know functions of an entrepreneur. Making decision. An entrepreneur makes decision every day. This include what to produce or sell, how much and where to sell. एंटरप्रेन्योर का जो काम होता है, डिसीजन लेने का काम होता है। रोज डिसीजन लेते हैं वो, ये उसमें सब शामिल होता है कि उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, किस चीज़ को सेल करना है, कितना सेल करना है, कितना बाई करना है। मैनेजिंग द बिजनेस। एन एंटरप्रेन्योर प्लान्स द फ्यूचर ऑफ हिज और हर बिजनेस। He's or she arrange for raw material, hires people for work and tells everyone what to do. They also check if the plan is being followed. तो बिजनेस मैनेज करने के लिए वो सारी चीज़ें रखते हैं कि उन्हें कहाँ से मटेरियल मिलना है, कहाँ से लोगों को हायर करना है, वो लोगों को बताते हैं कि उन्हें क्या करना है, और ये पूरा प्लान देखते हैं कि वो फॉलो हो रहा है क्या नहीं। डिवाइड इनकम। द एंटरप्रेन्योर डिवाइड्स द बिजनेस मनी फॉर मेनी ग्रुप्स। He spends money to buy material, pay rent of the buildings and salaries to the people. भाई एंटरप्रेन्योर्स का काम क्या है? उसको सारी चीज़ों को मैनेज करना है। वो ये देखते हैं कि उन्हें पैसा कहाँ कहाँ पे, मटेरियल खरीदने में कितना पैसा रखना है, जैसे बिल्डिंग रेंट पे है तो उसका कितना पैसा देना है, सैलरीज अगर लोगों को पे करनी है तो उस हिसाब से उसको इनकम को डिवाइड किया जाता है। टेकिंग रिस्क। बेसिकली दे टेक द रिस्क। रिस्क इज द चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग। रिस्क आप लेते हैं, वहाँ कुछ अच्छी भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है, दोनों पार्ट। एंड एंटरप्रेन्योर टेक रिस्क अगेंस्ट फायर, लॉस, आइटम्स एंड थेफ्ट। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। वो देखते हैं जहाँ पर उनकी बिल्डिंग है वहाँ पर कैसी सुविधाएं, आग से कैसे बचाव है, पानी से कैसे बचाव है, और क्या सुविधाएं वहाँ पर हैं, किन चीज़ों को जोड़ना है, चोरी से कैसे बचाया जा सकता है, बिल्डिंग को कैसे सेफ रखना है। दिस ऑल हैज़ टू बी टेक इन टू द कंसिडरेशन बाई टेकिंग रिस्क। क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट। एंड एंटरप्रेन्योर इज ऑलवेज ट्राइंग न्यू थिंग्स। ही सी डज दिस टू इंक्रीज देयर इम्पोर्टेंस एंड इनकम। एंटरप्रेन्योर जैसे हमने बात की कि हमेशा एक नई चीज़ को लेकर चलते हैं, एक नए आइडियाज़ को लेकर चलते हैं, नई नई चीज़ों के साथ प्रयोग करते हैं। ही और सी डज दिस टू इंक्रीज देयर इम्पोर्टेंस एंड इनकम। वो क्यों करते हैं? वो चाहते हैं कि हम एक तो अपनी पहचान बनाएं, एक अच्छी आय बनाएं, जिससे हम लोगों की, समाज की में अपना योगदान दे सकें। तो अपने योगदान देने के साथ साथ वो दूसरों को भी मदद कर रहे हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस to increase value to the organization, value to himself. So these all are the function of an entrepreneur. तो मुझे आशा है कि आप समझे होंगे कि एंटरप्रेन्योर्स के अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, एक एंटरप्रेन्योर किस तरीके से काम करता है, और आपको जो मैंने कहा था, आप और हम भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपके अंदर अगर वो क्वालिटीज़ हैं तो कितनी हैं, नहीं हैं तो आप कैसे बढ़ाएंगे। तो ये खुद आपको एनालिसिस करना है। सोचता हूँ कि आप अभी तक का पार्ट समझे होंगे। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।